Hello, hello everyone. Now welcome to all of you in FFB live chemistry classes. केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें कई लेक्चर भेजे जा चुके हैं और जिनको उम्मीद है देख करके ये सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। कल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे डिस्कस किया था, जिसमें किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती हैं, इस पे डिस्कस हुआ था। और आज के क्लास में हम उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे मॉलिक्यूलर जो डायग्राम किस तरह से बनते हैं, मॉलिक्यूलर्स का कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का होता है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। Now today's topic is molecular orbital configuration of some homonuclear diatomic species। तो molecular orbital बनने और फिर उनके बीच बॉन्डिंग का जो पिछले क्लास में जो पढ़ा है आप सभी ने, उन्हीं के एग्जाम्पल्स दे करके यहाँ पे उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। नाउ होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव टू आइडेंटिकल एटम्स लिंक टुगेदर। इसका एग्जांपल पिछले क्लास में भी दिखाया था, हाइड्रोजन यानी H2+ आयन का। These are A2 type, the hydrogen molecule ion H2 2+, इसका एग्जांपल है। This ion has one hydrogen atom and one hydrogen ion linked together. Each has one s orbital using linear combination of atomic orbital method, which is known as LCAO method. To 1s orbital will combine to give two molecular orbitals bonding sigma 1s and anti-bonding sigma 1s orbital. The only electron will be accommodated is sigma 1s. Thus bond order of H2+ is equal to half 1 minus 0 is equal to 2, जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हाफ। Thus H2+ ion can exist but it is unstable. It is paramagnetic in nature because one electron is present in 1s orbital. The bond length is 104 picometer. Its bond dissociation energy is 269 kilojoule per mole. यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एग्जाम्पल, इसका डायग्राम इस तरह से होगा, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हायर एनर्जी लेवल पे ये एंटी बॉन्डिंग 1s दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s बनाते हैं, जबकि दोनों ऑर्बिटल लोअर एनर्जी स्टेट पे दोनों आकर के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास होता है। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2+. Hydrogen molecule H2, it is formed from one s1 atomic orbital of two atoms. The atomic orbitals 1s1 will combine to form two molecular orbitals, sigma 1s and sigma star 1s. Bonding molecular orbital and
anti-bonding molecular orbital. Two electrons are accommodated on sigma 1s and sigma star 1s remains vacant. This is anti-bonding molecular orbital. This is bonding. Here bond order for H2 half 2 minus 0 is equal to 1. It is stable and diamagnetic in nature. It has single covalent bond. Its bond dissociation energy is 438 kilojoule per mole. The bond length is 74. तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों के पास जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसी तरह बनेगा, लेकिन यहाँ H लिखा जाएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. Now hydrogen molecule ion H2 minus. It is formed by the linking hydrogen atom with hydrogen ion. Both have 1s orbital. These will combine to form 2 molecular orbitals, bonding and anti-bonding. These available electrons are accommodated as sigma 1s square 2, some sigma 1s square, यानी bonding molecular orbital के पास 2 electron and anti-bonding के पास 1 electron. Thus bond order for H2 minus half 2 minus 1 is equal to half. Now it is unstable and paramagnetic in nature because this anti-bonding molecular orbital have 1 unpaired electron. Now hydride ion exists. Diagram इसका इस तरह से होगा. Molecular orbital diagram of H2 minus 1s orbital of 1 hydrogen atom and 1s orbital of hydride ion. दोनों कंबाइंड होके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक. Now helium molecule ion He2 plus. It formed by the linking helium atom with helium ion He plus. Both have 1s orbital. These will combine to form 2 molecular orbital, sigma 1s and sigma star 1s, bonding molecular and anti-bonding. These electrons are accommodated as sigma 1s2 and sigma star 1s1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है. देन बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ 2 minus 1 is equal to half. The value of bond order indicate that He2 plus can exist but is unstable. The bond dissociation energy is 242 kilojoule per mole. It is paramagnetic in nature. Both hydride H2 minus and He plus, both H2 minus and He2 plus have same number of electron in anti-bonding orbitals. Both have same stability, similar bond dissociation energy and similar bond length. Molecular orbital diagrams of He2 plus is equal to 1s orbital of He have a 2 electrons and 1s orbital of helium ion have 1 electron. तो 2 तरह की molecular orbital, bonding molecular orbital के पास यहाँ 2 होगा. जब ये फॉर्म करेंगे हाइयर एनर्जी स्टेट पे बनेगा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है. नाउ हीलियम मॉलिक्यूल He2. It is formed by linking 2 helium atoms. Both have 1s orbital. These will combine to form 2 molecular orbital. Bonding molecular orbital sigma 1s and anti-bonding sigma star 1s. 4 available electrons are accommodated as sigma 1s2 and sigma star 1s2. The bond order इसका क्या हो जाएगा, 0. Hence, there can be no possibility for the existence of He2 plus He2 molecule. So yes, bond order
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उनके बॉन्ड ऑर्डर क्या है ये लिस्ट यहाँ पे है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में H2 प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। H2 प्लस के बाद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, He2 माइनस के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और H2 प्लस के पास और H2 के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है। सिर्फ H2 प्लस के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन दोनों के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन दोनों के पास 1 1 है, जबकि H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और जो कि पेयर्ड है एक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बॉन्ड ऑर्डर H2 प्लस का हाफ, इसका 1, इसका हाफ, तो ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट जिनका हाफ बॉन्ड ऑर्डर है वो अनस्टेबल होंगे। He2 0 आ रहा है, दिस इज नॉट एग्जिस्ट। नाउ मैग्नेटिक नेचर, अब पैरामैग्नेटिक होगा जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी डाईमैग्नेटिक जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर किसी भी ऑर्बिटल के पास अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर दोनों के पास या तो 0 इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डाईमैग्नेटिक होगा। Thus, He2 molecule does not exist because bond order is 0. 2 electron of He, जैसा अभी बताया उसका ये डायग्राम है। He का के पास 1s2 इलेक्ट्रॉन है और He के पास 1s2 इलेक्ट्रॉन, दोनों जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास है, तो बॉन्ड ऑर्डर इनका क्या हो जाता है 0। Now He2 minus ion, total number of electrons 5. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, अब क्योंकि तरीका समझ में आ गया तो अब यहाँ पे शॉर्ट में बताया हुआ है। तो 1s ऑर्बिटल ऑफ He एंड 1h ऑर्बिटल ऑफ He माइनस होगा ये। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और हाइट आयन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और होगा, तब बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाएगा, तो आयन एग्जिस्ट करेगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। डायग्राम इसका इस तरह से होगा, 2s मिल करके हायर एनर्जी लेवल पे ये बनेगा, तो 2s मिल करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी पोजीशन पहला क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में कौन होता है 1s, तो पहले 1s के बीच कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा He2 माइनस का वो इस तरह कि 1s और 1s दोनों हीलियम, ये हीलियम आयन है और ये हीलियम एटम है, इनके बीच जब कॉम्बिनेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी तो एन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद दूसरी पोजीशन में 2s के बीच बॉन्डिंग होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s भी है, तो इनके बीच एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, सिग्मा स्टार 2 सिग्मा s1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे केस में ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर इतना हुआ और इसका डायग्राम इस तरह से होगा। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। लिथियम मॉलिक्यूल, Li2, the electronic configuration of lithium atom 1s2 2s1 होता है, thus total number of electron in Li2 molecule would be 6.
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 जब लिथियम एटम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Li2 molecule would be 6. The electronic configuration of Li2 molecule may be written as sigma 1s star 2, sigma 1s2 and sigma star 1s2 and sigma 2s. This may be written as Kk sigma 2s2 also, where Kk represents fully filled inner K shell in 2 atoms, that is sigma 1s2 and sigma star 1s2. These are also called non-bonding orbitals. It is clear from the electronic configuration of Li2 molecule that there are 4 bonding electrons and 2 anti-bonding electrons. So bond order Nb minus Na upon 2, so हो जाएगा 1. So Li2 molecule is stable because bond order is 1. It has one single sigma bond. The bond dissociation energy is 110 kilojoule per mole and the bond length is 265 picometer. As it has no unpaired electron, it is dimagnetic in nature. Lithium molecules are found to exist in vapor state. The stability order of lithium molecule. Li सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लिथियम आयन उससे कम और उससे भी कम Li2 माइनस. तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप Li2 देखते हैं यहाँ पे. इसको देखने के लिए स्मॉल करना पड़ेगा तभी ये दिखाई देगा. तो पहले एक लिथियम की 1s ऑर्बिटल दूसरी लिथियम की 1s ऑर्बिटल से जो इनमें लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का फॉर्मेशन होता है. हायर एनर्जी लेवल होता है 2s के लिए, तो 2s लिथियम का एक एटम का एक लिथियम एटम का 2s एंड दूसरे लिथियम का 2s दोनों के बीच कॉम्बिनेशन होता है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. तो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Li2. बाकी डिटेल डिस्कस हुआ है इससे पहले. इसके बाद ये डायग्राम था. अब आ जाते हैं Be2 यानी बेरिलियम मॉलिक्यूल, बोरान मॉलिक्यूल एंड कार्बन मॉलिक्यूल. The electronic configuration along with bond orders and magnetic nature of these molecules are given below. तो सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, उसके मदद से सारे डायग्राम बना सकते हो. फॉर द Be2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों बेरिलियम मॉलिक्यूल एटम के पास, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8. अब इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा के सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हाफ 4 - 4 0. दिस इज नॉट, this ion is not this Be2 molecule is not exist because bond order is here 0. मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो मैग्नेटिक नेचर कहाँ से आया. फिर B2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि एक बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब इनका 2 तरह के बॉन्डिंग होगी इनके बीच. एक सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ऑर्बिटल्स के बीच, S ऑर्बिटल कंबाइन होकर के बनाएंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और दूसरी तरफ लेटरल ओवरलैपिंग से pi2px1 एंड pi2py1 बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों बनेंगे. तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1, यहाँ 2 2, टोटल हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हाफ 6 - 4, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, उसके अलावा यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है. इसी तरह कार्बन में
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, 12 है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s2 हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी तरह से ये दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2px2 एंड पाई 2py। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ total number of electrons 8 minus 4 is equal, this is the, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नेचर क्या होगा, डाई मैग्नेटिक। नाउ बेरिलियम मॉलिक्यूल, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, अभी इसका टेबल में दिखाया था। तो फॉर बेरिलियम Be2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 2, उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग हैज 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 4 4, कितना हो जाएगा 0। द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, सो Be2 इज नॉट स्टेबल। इसका पूरा डायग्राम इस तरह से होगा। वन एस कंबाइंड होके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और 2s कंबाइंड होके सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं इन चारों के पास। तो दिस इज दी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 0 आ रहा है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से। फॉर द Be2 मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 थे, अभी टेबल में दिखाया था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s2 बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद 2s2 बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद ये है पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py1। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 इज इक्वल टू हाफ 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, क्योंकि इसके पास, इन दोनों के पास 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा पैरामैग्नेटिक, और इनका डायग्राम इस तरह से होगा। बोरान में सबसे पहले कॉम्बिनेशन 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। तो 1s ऑर्बिटल ऑफ वन बोरान एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर बोरान combine to form sigma 1s and sigma star 1s, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद और हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो 2s दोनों की बोरान की ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। यहाँ भी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 2p के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जहां ये अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड होके पहले एक लोब इसका 2px पाई 2py दोनों के बीच कॉम्बिनेशन होगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए। और दूसरी तरफ ये 2pz, तो सिग्मा 2pz दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइंड होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है सिग्मा 2pz। तो ये दोनों क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरी तरफ ये दोनों उसी तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है। तो अब चूंकि इनके पास एक एक 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो नेचर क्या होगा इनका, पैरा मैग्नेटिक। नाउ C2 मॉलिक्यूल, इनके बीच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यानी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल s ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। बाकी p से बन रहा है पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 इज 1 upon half 8 minus 4 is equal to 2।
अब इसका भी डायग्राम देखो। पहले molecular orbital diagram of C2, one s of one C and one s of another C. 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों में, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद 2s के बीच होगा कॉम्बिनेशन, तो सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उसके बाद आता है नंबर 2, इसके पास p ऑर्बिटल है दोनों कार्बन के पास। दोनों पहले 2px और इधर 2py दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, और दूसरा जो वैकेंट है उसके बीच दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा सिग्मा 2pz. तो these are the bonding molecular orbital, and like this these are the anti bonding molecular orbital. Unpaired electron यहाँ नहीं है, तो this is the dimagnetic molecule. This is the paramagnetic. Why? Yes, 2 unpaired electron present here, then this is paramagnetic. The bond order in B2 is a weak pi bond. Bond order in B2 is a weak pi bond. Yes. The bond order in boron molecule is a weak pi bond. The bond dissociation energy is 290 kilojoule and bond strength is 159 picometer. Carbon molecule, C2 molecule has double bond consisting of both pi bonds, as 4 electrons are present in pi molecular orbitals. Generally, in most of the molecules, the double bond consists of 1 sigma and 1 pi bond, like Li2 molecule. C2 molecules also exist in vapor state. Now, comparison of stabilities of H2, Li2 and B2. The 3 molecules, that is H2, Li2 and B2, possess the same value of bond order, but their stabilities are different. H2 molecule has maximum stability out of these molecules. This can be explained as follows. Lithium bond length is much larger than HH bond length. The overlapping of 2s atomic orbitals in lithium is less effective than the overlapping of 1s atomic orbital in hydrogen. Lithium molecule, Li2 molecule has 2 electrons in anti-bonding orbitals, while H2 has no electrons in anti-bonding orbital. In lithium molecule, the electrons in sigma 2s molecular orbitals are shielded by inner sigma 1s electron. Thus, there is less attraction between electron in sigma 2s and the nuclei. Because of above reason, Li2 is less stable than H2. Boron atom is smaller in size. Lithium atom and B2 molecule has 6 electrons in the bonding orbitals, while Li2 molecules has 4 electrons in bonding orbitals. Hence, B2 is more stable than Li2. Thus, the order of stability is like this. H2 is more stable than B2 and Li2. Now, nitrogen molecules. The electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. The nitrogen molecule, there are 14 electrons, of which 4 are in the K shell and are non-bonding. Each atom contributes 4 atomic orbitals, and thus the molecule consists of 8 molecular orbitals. Then 10 electrons are allotted to molecular orbital as follows. K sigma 2s2 bonding, sigma star 2s2, pi 2 pi x2, pi 2 pi y2, and pi 2 pz2. The Kk denotes the closed K shell structure, sigma 1s2 and sigma star 1s2. तो bond order क्या हो जाएगा? Half 8 minus 2 or half 10 minus 4 is equal to 3. The nitrogen molecule has 3 bonds, 1 sigma and 2 pi
The molecule is diamagnetic. It has high bond dissociation energy and bond length. Bond dissociation energy is this and bond length 110 picometer. Magnetic character is dimagnetic. The stability order of N2 molecule and ions are N2 is more stable than N2 plus and is more stable than N2 minus and more stable than N2 minus. Now see the diagram. Molecular orbital diagram of nitrogen. पहले दोनों नाइट्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के बीच दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है. मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. उसके बाद 2s orbital of both nitrogen combine to form bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. And now then p. तीनों ऑर्बिटल्स के पास दोनों नाइट्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है. ये इनके बीच कॉम्बिनेशन होता है. लीनियर कॉम्बिनेशन से ये 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं 2πpx 2ppy और ये 2 सिग्मा 2 pz. तो ये लेटरल कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन से. इसी तरह इधर तो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2πx एंड पाई स्टार 2πy एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो है ये भी सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है. Now N2 plus, N2 minus and N2 minus ions. The configuration of N2 plus, N2 minus and N2 minus ions along with their bond order, stability and their magnetic characters are tabulated here. Molecules, total electrons, उसके बाद इनका configuration दिया हुआ है यहाँ पे. ये N2 प्लस के लिए ये है, उसके बाद N2 माइनस के लिए ये है और N2 माइनस के लिए ये है. बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 3, फॉर N2 प्लस 2.5, फॉर N2 माइनस 2.5 एंड फॉर N2 माइनस 2. स्टेबिलिटी N2 is most stable, then N2 plus less stable, this is less stable and this is also less stable. Nitrogen is a dimagnetic, but all the ions are paramagnetic in nature. Bond dissociation energies are directly proportional to the bond order. The order of bond dissociation energy N2 is more than N2 plus. Now is equal as N2 minus, which is in दोनों, इसका इससे ज्यादा होता है और इसका इससे ज्यादा, लेकिन दोनों की वैल्यू मिला करके इक्वल होती है. Bond length is inversely proportional to the bond order. The order of bond length is like this. तो सारे लेने से हमें काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो मेरे ख्याल से बाकी के जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ऑक्सीजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को डिटेल में बताएंगे, क्योंकि काफी अभी बाकी है. उसके अलावा और भी एक और टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे. वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा. फिलहाल इनसी को समझो और यहाँ से हम अगले वीडियो में फिर से तुम लोगों को सारी चीजें डिटेल में बताएंगे. तो जो लास्ट क्लास होगा इसके बाद का क्लास होगा वो लास्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में. तो करीब सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब डिस्कस हो चुके हैं. इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और जहां जरूरत हो कॉपी में लिखें, नोट करें. जो भी जैसे डायग्राम है
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा करके जिस तरह से जो समझाया गया है उसको आप कोशिश करें कि कॉपी में नोट करके तैयार